ऐसा लगता है जैसे Hello. Hello to everyone. I'll see that अभी सबने join नहीं किया है. I'll give you some time to join the class. I hope everyone can hear me properly. So, in the previous class, we have learned about the basics of grammar, right? We learned about parts of speech. Basically, it was just an introductory class, but still we learned a lot in the class, right? In the previous class. So, this class, in this class, we are going to discuss about the syllabus of this APSSB syllabus. Okay, what kind of question they ask in their examination and what are the types of question they asked. Okay, so here is the syllabus. As you can see in your screen, okay, you can see this is the syllabus, the general syllabus. Okay, so uh, you can see that जितना भी क्वेश्चंस है ओके सारा का सारा क्वेश्चंस जो है वो कहाँ से पूछा जाता है basics of grammar. Okay, and what is the basics of grammar? Total the 8 parts of speech that we learned in the previous class. Okay, so all the questions are related to these 8 parts of speech from this area, from this topic. Okay, so that's why I told you this in the previous class that it is very important for all of you to learn the basics of grammar. Okay, it is the root. ठीक है, तो रूट है ये. अगर आपने ठीक से अपना रूट को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो आप क्वेश्चंस कैसे हैंडल कर पाओगे, राइट? सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट you should learn about noun, pronoun, verb, adjective, tenses, article, preposition, and conjunction. Okay. Here, here you can see that noun, pronoun, verb, adjective, but there is no this adverb, okay, and interjection. Even though it is not the part of this part of the syllabus, but still you have to learn it. Okay, why? I told you in the previous class that this all these 8 parts of speech are interconnected. So that is why it is very important for you to learn all the 8 parts of speech. Okay, आप किसी को भी आप skip नहीं कर सकते हो. Okay, and next you can see is vocabulary, right?
सो आपको vocabulary अपना स्ट्रॉन्ग करना होगा. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ आपको vocabulary में synonyms से क्वेश्चंस आने वाला है. ओके, synonyms, antonyms, idioms एंड phrases, हम लोग ये सारा कवर करने वाले हैं. क्लासेस जो अभी जो कमिंग क्लासेस होगा उसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. और कुछ वर्ड्स, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो मोस्ट अपरेंटली क्या है कि क्वेश्चंस जो है इन्हीं सारे वर्ड्स से लगातार पूछा जा रहा है. ठीक है. या फिर ऐसा वर्ड्स जो रेगुलरली क्वेश्चंस उसी से बनता है. ठीक है. तो इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. एंड सेंटेंस करेक्शन एंड एरर स्पॉटिंग. सो एरर स्पॉटिंग इज important. Okay, so this is the topic. This is the topic. This correction, okay, error spotting, which we are going to discuss while reading this parts of speech. Okay, because while we talk about noun or we talk about pronoun, verb, adjective, tenses, or any part of speech. Okay, while we are learning in deep about these parts of speech, then first of all, we have to learn the types of noun, the types of pronoun, types of verb, adjective. Okay. After that, we will learn the rules. Okay, the rules, and after that, we will have to discuss about the exceptions. So these are important. Okay, because questions are going to be asked. If you don't know, take a basics, so everyone know that what is noun, what is pronoun, what are the types of noun and pronoun. But in examination, the most of the questions are related to these two. Okay, if you don't know the rules, if you don't know the exceptions, it doesn't matter. Okay, it doesn't matter. You know the definition of noun or pronoun. It doesn't matter. Or you know the kinds of noun or pronoun. It doesn't matter. If you don't know the rules and exceptions related to noun and pronoun, that then वेस्ट है. ओके, वेस्ट हो जाएगा, आपका वो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है आपको, अगर आपको रूल्स पता है, एक्सेप्शंस पता है, तो आप क्वेश्चन आराम से हैंडल कर पाओगे. लेकिन आपको बस नाउन का डेफिनेशन, ओके, and you only know the kinds of noun, or you only know the kinds of all the 8 parts of speech and definition of all 8 parts of speech, then it won't be easy for you. Okay, so that is why it is important. So rules and exceptions का को लेकर ही एरर स्पॉटिंग बनाया जाता है. जो एरर स्पॉटिंग का जितना भी क्वेश्चंस है वो रूल्स और एक्सेप्शंस के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है. तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है इसको अच्छे से पढ़ना. ठीक है. अब क्या है, मैंने just to give you an idea कि कैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछा जाएगा एग्जाम में. उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए आज की क्लास में 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करके, ठीक है, मैंने लाया है. एज यू कैन सी हियर, ठीक है, आई हैव 20 क्वेश्चंस फॉर यू व्हिच वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस पर्टिकुलर क्लास. If time admits, will solve all these questions. Okay, the main this focus of solving this question. Okay, the main purpose of solving this question is just to give you the idea how the questions are going to be asked in your coming examination. Okay, so these are the questions. Most of the questions are, I mean, all of the questions are related to error spotting because ज्यादातर questions जो है वो error spotting से ही आता है, right? एंड इसमें गैप फिलिंग्स ये सब भी है, लेकिन आज की क्लास में सबको कवर करना दैट्स नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई आई जस्ट चूज वन टॉपिक टू गिव यू जस्ट द जनरल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन पेपर. ओके, I hope you have already seen the question paper, but still how to solve the question or how to handle a question in a proper way, that we will learn in this particular class. Okay, so if you have any question during the class, okay, just unmute your this video and then ask the question. Okay, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप पूछ लेना. If you are not comfortable, then just write it in your this chat. Okay, अगर क्लास के ड्यूरिंग अगर मैं नहीं देख पाऊंगी तो फिर मैं उसके बाद आपसे कांटेक्ट करके आपको बता दूंगी. ठीक है. So now दिस एरर स्पॉटिंग का सारा क्वेश्चंस अभी नीचे मैंने आपको दिखाया.
और ये जो एरर स्पॉटिंग है, जब हम नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव जब हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आफ्टर वी लर्न द रूल्स, आफ्टर वी लर्न द एक्सेप्शन एंड द काइंड्स ऑफ all the this parts of the speech, after that I'll give you some questions during the classes, okay, and together we are going to solve those questions, ठीक है। तो वो एरर स्पॉटिंग गैप फिलिंग वाला जो भी क्वेश्चंस है वो सारा इधर कवर हो जाएगा जब हम नाउन पढ़ेंगे, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे, जब एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव, टेंस, आर्टिकल, preposition और कंजंक्शन, ओके, तब ये सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एरर स्पॉटिंग वाला पॉइंट नंबर 4 वाला जो क्वेश्चन पॉइंट है, ये पॉइंट वो पूरा कवर हो जाएगा जब हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर कर रहे होंगे, तभी ये पूरा कवर हो जाएगा, ओके। आफ्टर दैट ये सारा हो गया, ठीक है। ये सारा होने के बाद, ये खत्म करने के बाद, ये फिनिश करने के बाद we will move forward to reading comprehension. Okay, so reading comprehension, most of the student thinks that it's easy. Okay, but it's not. Okay, so reading comprehension, I don't, I'm not saying that कि ये बिल्कुल भी आप हैंडल नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली रीडिंग comprehension, if you have a correct idea, okay, if you have correct idea, if you have correct knowledge about how to solve the question, just or how to solve a particular passage, then obviously you will be able to handle the questions, okay. But for that, you have to know the techniques. With those techniques, okay, I'm going to tell you in the this coming classes when we are going to learn about this topic. Okay, then I'll tell you the techniques. ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स अप्लाई करना है, किस तरीके से किसी पैसेज को आप अप्रोच करोगे, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज नॉट अबाउट योर इंग्लिश टेस्ट, ओके, हाउ मच इंग्लिश यू नो, और आपको ग्रामर कितना आता है उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। Reading comprehension is all about how you comprehend a particular passage in a proper way. Okay, आपका comprehension का टेस्ट होता है ये, ओके, इन सम वे कि आप आपका नॉलेज कितना है, ठीक है, आप किसी चीज को कितने अच्छे से समझते हो, ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट रीडिंग comprehension is about, okay। So it will take around 7 days, or maybe one or two more days, okay। बट स्टिल रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है वो इजी नहीं है, आपको इसमें भी अच्छे से काम करना है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे लेटर राइटिंग जितना बेसिक्स है वो सारा हम करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक में। फिर क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा है, ये भी सिलेबस आपकी ऐड है, ठीक है, ऐड है ये सिलेबस। एंड सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो आप बरसों से बचपन से पढ़ के आ रहे हो, लेकिन आप जो है स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आपको जनरल बेसिक जो ग्रामर है वो आपको पढ़ा दिया जाता है, बट रूल्स एक्सेप्शंस, ओके, और सर्टेन ऐसा चीज है जो आपको नहीं पढ़ाया जाता है। अ, उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है। रीजन ये है दैट ड्यूरिंग while you were in school, okay, your this thinking ability, okay, वो इतना ग्रो नहीं हुआ था कि आप इन सारे रूल्स और एक्सेप्शंस को आप अच्छे से कंप्रहेंड कर पाओ। दैट इज व्हाई आप इन सारी चीज को दोबारा, आप जब किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आप दोबारा पढ़ते हो। सो दिस टाइम, ठीक है, नाउ आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली डेवलप हो चुका है इन सारे रूल्स और एक्सेप्शंस को समझने के लिए, बिकॉज इन स्कूल टाइम, ओके, all these rules and exceptions, these doesn't matter, okay, why, because इससे कोई क्वेश्चंस आने वाला नहीं होता है, बट आगे जाके एग्जाम्स में ये जरूरी होता है। सो दैट इज व्हाई हम लोग सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो स्कूल में पढ़ा था उससे थोड़ा सा बिट डिफरेंट, ओके, ऑब्वियसली अटैच टू द रूट, रूट से तो कोई डिफरेंट नहीं होगा, जो आपने बचपन से पढ़ा था कोई डिफरेंट नहीं होगा, बट ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो और ऐड किया जाएगा। एंड लास्ट में पैराग्राफ राइटिंग का प्रैक्टिस किया जाएगा। सो दिस वाज योर सिलेबस। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ओके, आप चैट में लिख सकते हो या आप अभी भी बता सकते हो। अब
ये सारा जो क्वेश्चंस है वो मैंने चूज किया है और मैंने सेट किया है आप लोगों के लिए। इट्स नॉट दैट टफ, ओके, टफ नहीं है बिल्कुल भी, इजी है, इतना कुछ टफ नहीं है। तो ये आपको बस समझाने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है, कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है, so that you will just have a general idea about the question, okay? So that is why I set these questions for you, okay? So now see, और टोटल 20 क्वेश्चंस है यहाँ पे। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? अब इसे सॉल्व करने से पहले, ठीक है, ऑब्वियसली right now I haven't told you any exceptions. I agree. Okay, I haven't told you any rules. That too I agree. And for that, obviously, you have to join the class. Okay, you have to join the class, or you have to stay tuned with the class. Okay, you have to continue with the class. So that way you will come to know what are the exceptions, what are the rules, ठीक है, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या एक्सेप्शंस है, वो आपको क्लासेस जब आप कंटिन्यू करोगे, जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको पता लगेगा। सो यहाँ इवन तो आपको पता नहीं है, बट फिर भी आप समझने का कोशिश करना, जो मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगी अभी, ठीक है। ये अभी जब मैं क्वेश्चंस अभी हैंडल करूंगी, अभी जब मैं क्वेश्चंस करूंगी तो आप भी समझोगे, ठीक है, कि ये क्या है, कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे करना है। सी, क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखो। जब भी एरर करेक्शन आता है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए ध्यान से। द सिनेरियोज ऑफ दिस प्लेस, यू कैन सी दैट देयर इज वन ब्रैकेट एंड उसमें 1 लिखा हुआ है, राइट, एंड स्लैश डू नॉट मूव माई हार्ट, ब्रैकेट में 2 है, ठीक है, फिर स्लैश अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट, अगेन अंडर ब्रैकेट 3 एंड स्लैश नो एरर अंडर ब्रैकेट 4, राइट। So see, this is the type of question, okay. Some Most of the time this type of questions are asked. So here, why this under bracket 1 and then under bracket 2 between the sentence, right? You can see that there is under bracket 1 and slash under bracket 2, then slash, right, 3 4. So this is part of sentence, okay, part of sentence मतलब यहाँ पे आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा। I haven't give you any options, okay, but you will be asked that, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है, ये आपका मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ओके। तो यहाँ पार्ट 1 2 3 4 ऐसा दिया हुआ है ना। तो these are the part of sentence and you will be asked in which part of the sentence there is the error, okay। So you will be asked ऑप्शन नंबर 1 में है, पार्ट 1 में है, ठीक है, या पार्ट 2 में है, या 3 में है, या 4 में है, ठीक है, 4 है तो 4 में आपका, या 4 there is no error in the sentence, ठीक है। So you have to read the sentence properly, okay, you have to read the where is the error, okay, where is the error, whether the error is in this part, बिकॉज दिस इज वन सेंटेंस, ओके, ये जो सेंटेंस है ये एक ही सेंटेंस है। बस आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या दिया गया है, कंफ्यूज करने के लिए ये ब्रैकेट दे दिया ये बीच बीच में, लेकिन ये एक ही सेंटेंस है, बस उसको डिवीजन कर दिया, ठीक है, बस इतना याद रखो, लेकिन सेंटेंस एक ही है। समझ में नहीं आ रहा है, पूछना, ठीक है, अभी पूछ सकता है आप लोग, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, लेकिन ये समझो कि ये एक ही सेंटेंस है, ठीक है, ये पूरा एक सेंटेंस है, बस इसको डिवीजन कर दिया ऑप्शन ऑप्शन देने के लिए, ठीक है। आपको पता करना है कि इस सेंटेंस में इस वाले पार्ट में वो एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, या इस वाले पार्ट में, सॉरी, या कोई एरर नहीं है, ठीक है, आपको ये डिफाइन देखना है। जी, अब इसको कैसे करना है, देखो, आप क्वेश्चन को पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो। यहाँ क्या है, the scenarios of this place do not move my heart up to a great extent, okay। So यहाँ पे पूछा गया है कि क्या यहाँ कोई एरर नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई एरर है, और एरर है तो किस पार्ट में है, ओके। So here you can see that there is one word, okay, there is one word, आपको देखकर खुद पता करना है। और ये जो पता करने का जो ये प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आप एक बार आप ऐसे देखोगे और आपको पता चल जाएगा, नहीं, जब आप क्लासेस अटेंड करोगे तो आप जब
क्लासेस के टाइम, ठीक है, क्लासेस के दौरान आप क्या है, आप साथ ही साथ यू आर गोइंग टू हैंडल, आई एम गोइंग टू गिव यू सम क्वेश्चंस, ओके, in the class together we are going to solve those questions. So while solving those questions, while if we read noun, okay, if we learn noun in detail after this completing this definition of the noun, after completing the types of noun, if, after learning the rules and exceptions, after that I'll give you the questions. Same goes for pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction. For every part of speech, I'm going to give you this type of questions. So automatically, in these 2 months, okay, in these 2 months, you are going to learn, you are going to easily learn how to see the errors in the sentence. Okay, error कैसे आइडेंटिफाई करना है वो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि हाँ ये क्वेश्चन देख के आप नर्वस हो जाओगे, ठीक है, ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, आप खुद ब खुद जैसे आप क्लास अटेंड करते जाओगे आपको पता चल जाएगा, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, एरर कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये वर्ड है, देखना, ये वर्ड, ठीक है, सिनेरिस। यहाँ पे ये जो वर्ड है ये गलत है, ठीक है, ये क्यों गलत है, सिनेरी इज अ नाउन, ठीक है, ये एक नाउन वर्ड है। अब इस नाउन वर्ड को, ये नाउन का कौन सा टाइप है, ये एक अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये गलत है, ठीक है, ये वर्ड गलत है, दिस इज इन द दिस पार्ट वन ऑफ द सेंटेंस there is a error, okay, and the error is what, scenario. Now this is a wrong word, instead of scenarios, okay, scenarios we write scenario, there is no word, ठीक है, कोई ऐसा वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा वर्ड है ही नहीं सिनेरियोस, ठीक है। अगर आप आपको पता है, ग्रेट, अगर आपको नहीं पता है तो आज आप ये जान लो कि देयर इज नो वर्ड, ओके, सिनेरियोस कोई वर्ड नहीं होता है। वी से वी ऑब्वियसली बोलने का, जब हम लोग बात करते हैं तो बात करते वक्त हम लोग किसी भी टाइप का वर्ड यूज कर सकते हैं, राइट, बट while writing these are the things which we have to keep in mind, okay, ये जो word है this doesn't exist, why, because scenario is an uncountable noun, okay, and uncountable noun, जब हम अनकाउंटेबल बोल रहे हैं, ठीक है, आप बताओ, ये जो वर्ड है, ठीक है, कैन यू सी दिस वर्ड, राइट, वाटर, टेल मी, इज दिस वर्ड करेक्ट, one more example, okay, I'm giving you one more example, tell me, is this word correct, obviously not, right, there is no word as waters, there's no word as sugars, we can't say, we can't go to a retail this shop, right? Any retail shop, and there will say, कि भैया give me 1 packet of sugars or 2 packet of sugars. We can't say that. Even though it is an uncountable noun, but still we can't add s to these words. Okay, why? Because with uncountable noun are already in a plural form. We don't have to add any s with the uncountable noun. Okay, so that is why this word is incorrect. This is a correct word. Okay, इवन दो अनकाउंटेबल वर्ड जो है इससे पता चल रहा है कि वर्ड जो है वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, यू कैन मेक दैट प्लूरल वर्ड, ठीक है, उस प्लूरल वर्ड को आप मोर प्लूरल में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं ना, जो ऑलरेडी प्लूरल उसको आप और थोड़ी प्लूरल में कन्वर्ट कर सकता है, राइट, तो जो चीज ऑलरेडी प्लूरल है उसको आप प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, ये ऑलरेडी प्लूरल है, वर्ड खुद में प्लूरल है, so that is why you can't add s to this word, okay, so with most of the uncountable noun, obviously there are some exception, but still with most of the uncountable noun we don't add s, okay, we see that this word is what, this, okay, ये word है, ठीक है, जैसे मान लो
हम लोगों ने देखा ये वर्ड, राइट? ये वर्ड हम लोगों ने देख लिया। अब लग रहा है कि ये प्लूरल है, ठीक है। ये न्यूज जो है, ऑब्वियसली ये प्लूरल है, इसमें एड जो है वो हम लोगों ने इसको प्लूरल बनाने के लिए ऐड नहीं किया, ये ऑलरेडी ऐसा ही होता है, ये वर्ड ऐसा ही होता है, WNEWS, राइट, न्यूज। तो ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने इसको प्लूरल बनाया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है, जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है, समटाइम्स किसी किसी वर्ड में एस लगा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्लूरल बनाने के लिए लगा है, वो वर्ड वैसे ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट देयर आर आई मीन each uh, each and every uncountable noun word are already plural words. We don't have to s with those words. हम लोग न्यूज को न्यूजेस तो नहीं बोल सकते हैं, राइट? वाटर को वाटर, जैसे वाटर को वाटर्स नहीं बोल सकते, शुगर को शुगर्स नहीं बोल सकते, और मिल्क को मिल्क्स नहीं बोल सकते हैं। सो जस्ट लाइक दैट हम लोग सिनेरी को सिनेरीज नहीं बोल सकते हैं। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ अनकाउंटेबल नाउन, ओके। So that is why this part, this word, okay, the part one of the sentence is incorrect, and there is obviously there is error, okay, in the sentence. आपको समझ में आ रहा है ना सभी को? आई गेस। नाउ प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 2, ओके, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो उससे। Many opulent, many opulent people play billiards in their free time. Okay, here opulent, opulent means rich people. Okay, rich people. Okay, billiards. Here billiards. Billiards means pool. Pool मालूम है ना? वो डंडी से जो वो बॉल्स को मारते हैं ना टेबल में, that is pool, billiards. Okay, in their free time. You have to identify, ठीक है? आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। Now you have to identify if there is any error in this sentence or not. Now here there is no error. Okay, there is no error because I taught you this all 8 parts of speech in the previous class, right? So that's why these are the questions from noun. Okay, not all the questions, but till question number 5, ये क्या है, ज्यादातर नाउन का क्वेश्चन है, ओके। एरर्स आर रिलेटेड टू नाउन। So here you can see there is one word, okay, there is one word, many opulent people, ठीक है। opulent मतलब आपको मैंने अभी बताया, rich people, okay, rich people play billiards in their free time. You can see that there is one word, sorry, there is one word, billiards, okay। So questions जो है एपीएसएसबी का इन सारा वर्ड से भी बनता है। बिलियर्ड्स जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो ज्यादातर क्वेश्चंस में देखा गया है। ये स्पोर्ट्स का नाम है, पूल, ओके, पूल जो टेबल में जो खेला जाता है ना वो, ठीक है, उसका है। तो इससे ज्यादातर बना जाता है, तो कभी कभी इसमें इसको कुछ ऐसे दिया जाता है, ये एस हटा दिया जाता है और वो और ऐसे लिख कर दिया जाता है, और आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि whether there is any error in this sentence or not. Okay, so in this sentence there is no error. Why? Because billiard is a uncountable, okay, uncountable noun. Again, with this billiards, we can't write billiard. Okay, we can't write billiard. It is billiards. Why? स्पोर्ट्स का जो नाम है उसमें एस लगा होता है जनरल, ओके। सो दैट्स व्हाई ये बिलियर्ड्स जो है बिल्कुल सही है। एक अनकाउंटेबल, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ
ठीक है, सो देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। अगर यहाँ एस नहीं लगा होता तो ये क्या होता, ये यहाँ एक कोई ना कोई एरर होता, बट यहाँ क्योंकि एस लगा हुआ है, ठीक है, और वर्ड बिल्कुल सही तरीके से दिया हुआ है, सो दैट इज व्हाई इन दिस सेंटेंस देयर इज नो एरर। सो और एक चीज है, आपको ध्यान रखना है कि हमेशा सेंटेंस में एरर होता है ये जरूरी नहीं है, किसी किसी सेंटेंस में एरर नहीं भी रहता है, ठीक है। तो जबरदस्ती कहीं एरर आपको ढूंढना नहीं है, ठीक है। जहाँ नहीं है नहीं है, जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। अब ये अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ये आप लोगों ने, और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस अबाउट इन योर दिस the in your classes, right? So already you have learned this, but still you have to refresh your memories, right? आपको पता होना पड़ेगा कि countable noun कैसे work करता है, uncountable noun. Obviously, what is uncountable noun? Things which we cannot count will come under uncountable noun. Things which we can count, okay, that will come under countable noun, right? So, and there are this collective noun. We have this. Um, concrete noun, and we have abstract noun, common noun, proper noun. These are the kinds of noun. Under this, we have exceptions. Okay, we have rules which we have to learn. तो वो तो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो बस ये एक बस डेमो है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, और क्वेश्चंस बता रही हूँ कि किस टाइप से आता है। तो यहाँ पे आपको ये सारा क्वेश्चन हैंडल करने के लिए भी ऑब्वियसली आप, जैसे मैंने अभी बताया, अनकाउंटेबल नाउन, ओके, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम अनकाउंटेबल नाउन, बिकॉज एरर्स आर मोस्ट प्रोबेबली, जो एरर्स है वो जो कहाँ से बनता है, ज्यादातर जो एरर्स है वो ज्यादातर ना अनकाउंटेबल नाउन से बनता है, क्योंकि उसमें एरर होने का ज्यादातर चांसेस रहता है। So that is why uncountable noun is very important, collective noun is very important, abstract noun and concrete noun is very important. Okay, I mean all the kinds of noun are important, उसमें आपको रूल्स पढ़ना होता है। तो अभी के लिए मैंने बस काउंटेबल नाउन से बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर वहां से एरर्स आता है। एंड next question, see, question number 3 is peasantry have become an arduous job nowadays in social life of India. Okay, तो peasantry, यहाँ पे peasantry जो है, ये एक, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इस peasantry को यूज किया जाता है फार्मिंग के लिए और फार्मर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये जरूरी है, यहाँ एरर क्या है, एरर क्या है, ठीक है। अब जब मैंने बताया ये क्या है, इट इज अ अनकाउंटेबल नाउन, पेजेंट्री इज अनकाउंटेबल नाउन, एंड इट इज रिलेटेड टू फार्मिंग एंड फार्मर्स, ठीक है। तो मतलब विलेज एरिया में ले लो, ज्यादातर क्या है, ज्यादातर फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स को काम करने वाला रहता है, राइट। सो उन सबको एज अ होल एक यूनिट बना के हम लोगों ने पेजेंट्री नाम दिया, इट्स अनकाउंटेबल नाउन, एंड इट डजंट मैटर, ओके, इट डजंट मैटर if you have learned that peasantry is the uncountable noun. It doesn't mean that it will it can be, okay, it can be any other kind of noun. अगर कोई वर्ड जो है वो अनकाउंटेबल, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरा काइंड ऑफ नाउन नहीं हो सकता है, दूसरा एक वर्ड जो है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, ठीक है। At the same time, it can be uncountable noun, or it can be a collective noun, or it can be an abstract noun. Okay, वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद ही you will come to know कि if a certain word is given, what is the kind of the word, okay, what is the kind of the word, what are the types of the word, and what the word suggest, okay, at the time वो word किस चीज को सजेस्ट करे, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच को सजेस्ट कर रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि अगर मैंने बोला किसी किसी क्योंकि नाउन में जो क्वेश्चंस है वो एक्सेप्शंस एंड रूल्स से बनता है, जो आपको पहले से मैंने बता दिया है, राइट। तो इसमें क्या है, आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है, एरर्स कहाँ से बनेगा, जैसे आपको बताया, आपने बचपन से पढ़ा कि सर्टेन वर्ड वो क्या है, वो नाउन है, ठीक है। आपको सर्टेन वर्ड ये पढ़ाया गया है कि ये पर्टिकुलर वर्ड, मान लो वाटर, ठीक है, वो नाउन है, ठीक है, वाटर एक नाउन है, लेकिन ये कोई पत्थर का लकीर नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है।
ये जो वर्ड है मैंने बोला इट इज अ नाउन वर्ड, बट it can be in a certain sentence, it can be an adjective word. Okay, it can act as an adjective word. In a certain sentence, it can act as a verb. But the root word is noun. ठीक है, ये एक noun word है, but in a sentence, sometimes it acts as in verb or as an adjective or any other parts of this. Sometimes it happens. Okay, ग्रामर का यही तो वो है बात है, ठीक है, जिसकी वजह से क्वेश्चंस बन रहा है एरर का. Why? Because a certain word can act as different this part of speech. Okay, समझ में आ रहा है ना. लेकिन वो सेंटेंस का अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. बट वाटर जो रूट वर्ड है वाटर का, वो क्या है, नाउन है, लेकिन वो कभी कभी चेंज होकर कुछ और भी बन सकता है, कोई और पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी एक्ट कर सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन ज्यादातर इसी फॉर्म्स में पूछा जाता है. इस ये सारा एरर्स को देखते हुए जो एग्जामिनर है वो इस चीज का फायदा उठाता है. ठीक है, कैसे, आपको नहीं पता है तो ऑब्वियसली वो आपका फायदा उठाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो. ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इजीली उस क्वेश्चन को हैंडल कर लोगे. तो जस्ट लाइक दैट हियर प्रेजेंटरी इज अ अनकाउंटेबल नाउन. नाउ दिस प्रेजेंटरी, ओके, it is also a collective noun. ठीक है, it is also a collective noun. What is collective noun? When we talk about collective noun, okay, so collective noun is what, when we give name. Okay, yeah, when we give name uh, to a group of thing or person. ठीक है, दैट इज कलेक्टिव नाउन, राइट. जब किसी भी ग्रुप को मैंने एक यूनिट बनाया और उसको मैंने एक नाम दिया, दैट इज कलेक्टिव नाउन, राइट. सो collective noun is what, it is also collective noun also, it acts as a singular noun. How? Because if I say for example, यहाँ एक की है, यहाँ एक की है और यहाँ एक की है. ठीक है, अगर मेरे पास सिर्फ एक की है, टेबल में सिर्फ एक की रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, की, राइट. व्हेन there is one key, there is three keys, okay, lying on the table, then I'll say there are keys, eight. But when maybe हमको ये क्या है, ये कीज जो है हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो दैट्स व्हाई एक रस्सी मैंने लिया और इस कीज को मैंने क्या किया, एक साथ मैंने बांध दिया. ठीक है, जब मैंने इन कीज को एक साथ बांध दिया, नाउ इट बिकम व्हाट, हम इसको अब कीज नहीं बोल सकते हैं, अब हम इसको बोलेगा बंच ऑफ की. ठीक है, सो व्हेन आई से bunch of key, it became one unit and it acts as a singular noun. ओके, इट एक्ट्स एज अ सिंगुलर नाउन. जैसे ही मैंने इसे एक रस्से में बांध दिया और एक पंच बनाया, तो वो एक यूनिट बन गया. आप इसको एक सिंगल मानोगे. ठीक है, ये एक यूनिट है, एक है. ठीक है, तो यहाँ और एक रखा होगा तो दो यूनिट हो जाएगा, तब ये प्लूरल बन सकता है. बट अदरवाइज ये सिंगुलर है अभी. ठीक है, क्यों, लेकिन अब जैसे ही अलग किया तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना, ये है. ठीक है, तो प्रेजेंटरी एक कलेक्टिव नाउन है. ठीक है, जो एक्ट करता है सिंगुलर वे में. ठीक है, बट जब भी हम कोई सेंटेंस हैंडल करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई क्वेश्चंस करते हैं, तो उस क्वेश्चंस में हर सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है. ठीक है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का नीड है, एक वर्ब का नीड है और एक ऑब्जेक्ट का नीड है. ठीक है, कैसे, देखो, इसको समझ भी नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा अभी ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको. ठीक है, ये ऑब्वियसली आप बिल्कुल, ये कोई टफ नहीं है. ठीक है, बहुत ही इजी है, आप इसको आराम से समझ जाएगा. क्लास में होने से तो और भी अच्छे से समझ जाएगा. ये कोई टफ चीज नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, देखो, हर सेंटेंस में हमको वर्ब तो आता ही है. जैसे सी, जैसे सी सीता
is playing mm, playing mm, cricket. Okay, Sita is playing cricket. Now here, Sita is the noun, this is the verb, and this is again a noun. ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हम ये बोल सकते हैं सीता इज प्लेइंग, ठीक है? अ, अच्छा, क्या हम ऐसा बोलते हैं इज प्लेइंग क्रिकेट? नो, राइट? हम सीता को हटा के सिर्फ सब्जेक्ट, मैंने अगर मान लो मैंने सब्जेक्ट हटा दिया, ये हटा दिया मैंने, ठीक है, ये जो है ये मैंने हटा दिया, क्या सिर्फ ये इतना सेंटेंस एनफ है? नहीं है, राइट? हमको इसके आगे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा जिससे ये पता चले कि कौन क्रिकेट खेल रहा है। सीता क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। अब अगर हम फिर यहाँ से ये हटा दिया, मान लो ऑब्जेक्ट हटा दिया, ठीक है, तो सीता खेल तो रहा है लेकिन सीता क्या खेल रहा है ये हमको कैसे पता चलेगा जब तक हम ये ना लगाओ, राइट? सो in every sentence, we need a subject, we need a verb, and we need an object. Now, what is subject? The word which we used before verb, that is subject, okay? And the word which we use after verb, ठीक है? Verb से पहले जो word use हो, वो subject है. Verb के बाद जो word use हो, वो क्या है? वो object होता है, ठीक है? तो हर sentence में हमको subject, verb और object वो जरूरी होता है. उसके बिना sentence complete नहीं हो पाएगा. इसके बिना सेंटेंस अधूरा साउंड करेगा. जैसे मैंने बताया एवरी सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, बट एवरी कलेक्शन ऑफ वर्ड doesn't mean every collection word doesn't mean that collection of word is a proper sentence. Why? Because हर टाइप का सेंटेंस को अगर मैं बोलूँ आई लव यू, ओके, लेकिन उसी चीज को मैं यू लव आई करूँ तो गलत हो जाएगा. Why? Because that is not a proper sentence, okay? Even though that is a collection of words, but still that is not a proper sentence, right? So that is why every collection of word or every sentence we can't consider it as a proper sentence if that sentence doesn't make any proper sense. Okay, so that is why we need subject, verb, and object in a proper way. Okay, in a proper way हम लोगों को चाहिए ही चाहिए. That is the need of the sentence. That is the demand of the sentence. ठीक है. सो यहाँ भी देखो प्रेजेंटली इज अ नाउन, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है. इसके बाद हमको नीड है क्या का? वर्ब का. ये वर्ब है, हैव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब, ओके, जो कल मैंने बताया, ये वो वर्ब है. अब वर्ब जो है देखो, अब इसका भी सर्टेन वो है, अगर मेरा सब्जेक्ट है सिंगुलर तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है. जैसे देख लो, हम ये तो नहीं बोल सकते है सी आर प्लेइंग, इज इट करेक्ट? नो, राइट? इट इज नॉट करेक्ट. व्हाई? यहाँ पे क्या होना चाहिए? सी, सॉरी, सी इज. सी इज होना चाहिए. यहाँ पे आर क्यों करेक्ट नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए. व्हाई? बिकॉज सब्जेक्ट इज सिंगुलर, दैट इज व्हाई वी नीड अ सिंगुलर वर्ड. We need a singular word. We can't take or we can't write after a singular subject, we can't write plural verb. Okay, we always need a singular verb. That is how a sentence sounds suitable. Okay, so that is why here also peasantry is a singular verb, a singular noun, okay, or singular subject, and after singular subject we always need singular verb. That is have, is, have, and has and have. Okay, we have these two verbs. So has is singular and have is plural. Okay, so that is why after peasantry we will cut this verb and we will write has instead of instead of have, we will write has. Okay, and that's how the sentence becomes suitable. And here, peasantry indicates, okay, the social life of those, not everyone living on the this living in the country, this India. Okay, not every person in India they are associated with peasantry, right? That is not their this. Here, job is written.
इंस्टेड ऑफ जॉब, ओके, यू कैन से ऑक्यूपेशन, ठीक है। ऑक्यूपेशन यहाँ लिखना, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। सो एवरीवन जो है वो इस ऑक्यूपेशन में तो नहीं है, राइट, इस वो में तो है नहीं। तो इंडिया में कुछ ऐसा सोसाइटी है जो कुछ ऐसे लोग हैं जो फार्मिंग में इंक्लूडेड है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो इन लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, द, ठीक है। peasantry has become an arduous occupation instead of job, okay, जॉब के बदले ऑक्यूपेशन लिखना, ऑक्यूपेशन। nowadays इन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी मिस्टेक है, इनके बदले द होना चाहिए, द सोशल लाइफ ऑफ इंडिया, ओके। नॉट एवरी पर्सन इन India is engaged in this occupation, right? Some of the, especially the people who are living on the countryside, they are this associated with this occupation, right? So that is why there is an error in the sentence. With the first error is what, have. We have to convert it to has, and again an arduous job. Instead of job, we have to write occupation, okay? And again nowadays in social life of India यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे इनके बदले दा कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो, फिर मैंने आपको आगे ये बताया था कि आपको ऐसे ऑप्शंस ए बी सी करके ऑप्शंस के किस पार्ट में गलती है, ये आपको पूछा जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन में वन, एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे, ठीक है, यू विल बी आस्क्ड इफ देयर इज अ दिस एरर इन 1, 2 एंड 3, आई मीन ऑल टुगेदर ये तीनों में ही एरर है, ठीक है, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो आप उस पार्ट को 1, 2 एंड 3, ओके, उसको आप क्या करोगे, टिक करोगे। समझ में आया ना? सॉरी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इफ यस, देन प्लीज राइट ऑन द दिस, आप चैट में लिख दो कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको और एक बार समझाने का कोशिश करनी है, ठीक है। टिल क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से लिख दो। I'll check the chats now. Application and precise नहीं है, okay. This now you understand, right? आपने कुछ पूछा है यहाँ पे, आई एम सॉरी, मैंने पहले नहीं देखा चैट्स को। आपने ये क्या पूछा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप बता सकते हो फिर से? ओके ओके ओके, एप्लीकेशन एंड प्रिसाइज दिस, ओके, वो नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, या आई गॉट इट, ओके, डोंट वरी, we'll cover that also, okay. Application writing and precise, okay, डोंट वरी, वो भी कवर हो जाएगा। आप लोग कनेक्टेड रहो क्लास में, ठीक है। आइदर चैट्स के थ्रू, ठीक है, जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे, ठीक है, ऑल ऑफ यू, इफ यू बिकम कंफर्टेबल विद मी इन द क्लास, ओके, देन यू कैन टॉक टू मी ऑल्सो, ओके। अगर आप डायरेक्टली बात करोगे, इफ द क्लास बिकम्स इंटरैक्टिव, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस प्रॉपरली, और इन द क्लास इफ यू आर इंटरेक्टिव, ठीक है, आप एक्टिवली अगर क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा क्यों रहेगा? क्योंकि आप ओपनली क्वेश्चन पूछोगे, आप साथ साथ क्वेश्चन पूछोगे, आपको साथ साथ जवाब मिलेगा, ठीक है। फिर आप काउंटर वो कर सकते हो, रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करने से ही वो क्लास अगर इंटरेक्टिव हो तो ज्यादा अच्छा है, मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो अभी मैंने 3 क्वेश्चंस किया है, एज यू कैन सी टाइम अभी होने वाला है, फिर भी हम एक लास्ट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हम लोग करते हैं, या उससे आगे जो है वो क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन चूज करके अभी करते हैं, ठीक है। तो जब अगर आप कंटिन्यू करोगे तो
हमेशा याद रखना कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, जैसे अभी इन्होंने लिखा है, ठीक है, यहाँ पे चैट्स में, वैसे आप लोग भी लिखना है, हर हर कोई जो अभी कनेक्टेड है क्लास में वो लिखना है, ठीक है। Wait. Okay, now see here we have question number 6. Okay, question number 6, last question. ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब डोंट वरी, दिस क्वेश्चन अगर इवन तो इस क्लास में अगर ये क्वेश्चन छूट रहा है, इवन इवन तो इस क्लास क्वेश्चंस को कमिंग क्लासेस में करवा देगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वो ही नाउन प्रोनाउन के अंदर में जब एरर करेक्शन दिया जाएगा, there we will this learn about these questions, okay, and solve these questions together. So question number 6, अच्छे से देख लो, you, I and he are going. Okay, this is the question. Now, here you can see you, I, and he are going. Okay, अब बताओ if there is any error. Obviously, there is an error here. Okay, what is the error? You see, you. Okay, this is what is this? Pronoun, right? I also pronoun, he also pronoun. We have learned that, okay? You, I, he, it, him, his, she, them, their, it. Okay, all these words are pronoun word. Okay, so now now that we know the pronoun words, we have to know the exceptions, the rules, what we are going to um just apply while solving the questions. Okay, what are the rules that we are going to apply while solving the questions? So here you see you, I, and he. These are the personal pronoun. Okay, personal pronoun. इसको भी हम लोग क्लास में डिटेल से जब क्लास किया जाएगा तब डिटेल से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ये सारा एक पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। अब जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं तो आपने क्वेश्चंस देख लिया है, आई गेस लिख भी लिया है। तो देखो, यू जो है ये थर्ड पर्सन है, ही इज अ सेकंड पर्सन, ओके, सेकंड पर्सन, एंड आई इज फर्स्ट पर्सन। Now, when we talk about pronoun, okay, when we talk about pronoun, pronoun is what? It is जो pronoun है वो पूरा इसके ऊपर based है। Second person, third person, first person, okay, इन तीन के ऊपर based है। Personal pronoun is very 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 important in this. Uh, sorry, pronoun. Okay, how it is important? It is important because see, when we have a conversation with our friend, okay, or maybe with our known person, okay, then you always see you can't have a conversation, okay, if there's no person near you who can listen to whatever you are saying, right? See, you went to a park, okay, or you went anywhere, okay, and you were sitting there and you were talking to yourself, okay. There is no one, there is no one who is listening to whatever you are saying, okay. Then the person around you, they will think that you are a bit mental person, right? Because when we see a person, this is the impression, okay. When we see a person who is talking to himself, this is the impression that we get from that person, that maybe this person is mad, that is why he's talking to himself, right? So, why I have given this example? Because this is the reason why we need a second person who will listen to whatever we are saying, and in times he will also engage in the conversation, right? He will also say something, he will listen to you, and he will also say something, okay. So that means to have a conversation we always need two-person, okay, we always need two-person to have a conversation, but we also need a third person, okay. So first person is speaker, who is speaking, and a person who second person is what, the person we are spoken to, okay. And what is third person? When two-person meets, okay, obviously they were talking, but when two-person meet, they are talking, they are having a conversation, so obviously they were talking about
some topic or some friend, right? So maybe two-person they are sitting and they were talking. Maybe they are talking about weather, or maybe they are pitching about their friend. Okay, this can happen, right? So this means what? That कि अगर दो पर्सन मिलता है वो दोनों बात करेगा, और वो दोनों बात करेगा तो वो दोनों किसी न किसी के बारे में बात करेगा, या किसी न किसी चीज के बारे में बात करेगा। वो वेदर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में वो लोग बात करेंगे, इट बट दीज टू पर्सन, ठीक है, दे ऑलवेज नीड अ टॉपिक। ठीक है, टॉपिक तो चाहिए चाहिए, बिना टॉपिक का तो वो लोग बात नहीं कर पाएगा, राइट? सो the topic is third person, either some person or either some this, ठीक है, और some this topic, okay? वेदर हो सकता है, बुक्स हो सकता है, मूवीज हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में बात करना या किसी के बारे में बात करना। सो this first person is speaker, second person is listener, and the third person is person we are spoken to or person we are spoken of. Okay, so here you can see, here this is you is third person, I is this first person, and he is second person. Is there any error here? Okay, now now see, यहाँ पे सीक्वेंस का एरर है। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस का क्या एरर है कि जब हम लोग, ठीक है, जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, और अगर थर्ड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन अगर एक ही क्वेश्चन में साथ में दिया गया है, या एक ही सेंटेंस में साथ में दिया गया है, तो ऑलवेज रिमेम्बर ये इसी सीक्वेंस में आएगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आएगा, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले थर्ड पर्सन आया हुआ है, ठीक है, अभी हम यहाँ बता रहे हैं आपको, देखो ध्यान से देख लेना। अभी मैंने बोला कि क्या चाहिए हमको, थर्ड पर्सन पहले चाहिए, दिया हुआ है यहाँ पे, ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। फिर हमको सेकंड पर्सन चाहिए, लेकिन यहाँ फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। यू कैन सी आई इज अ सेकंड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन। सो ऑब्वियसली this sentence is incorrect. Why? It will become correct when we put he here and I here. If I if I write this sentence like this, okay, you, he, and I are going, okay, then this sentence will become grammatically correct. But there is an error here. Why? Because I put in place of the second person, I put the first person, okay, and in place of first person, I put second person. So that is why this particular this sentence or question is incorrect. Okay. So that is all for today's class. I hope all of you understand the questions properly. Okay. So these are the type of questions that are going to be asked in your examination. So this is just a glimpses. Okay. Examination का पेपर का just glimpses है, कुछ इसी टाइप का questions पूछा जाता है, इतना ही टफ होता है, ठीक है। आपको अभी टफ लग रहा है दिखने में, लेकिन एक्चुअली टफ नहीं है। आपको, आप अगर रूल्स और एक्सेप्शंस जान लिया तो आपको ये बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारा क्वेश्चंस जो है, ये आपको प्रॉपरली हैंडल करने के लिए आपको एक्सेप्शंस, रूल्स एंड काइंड्स और सब कुछ जितना भी है आपके ग्रामर के अंदर में, जो भी रूल्स और एक्सेप्शंस है, और जैसे मैंने बोला इंटरकनेक्टेड है, इन सारे चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एवरी पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एवरी रूल को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इवन रूल्स आर ऑल्सो, even the rules of this, okay, other parts of speech, I mean, rules of noun and rules of pronoun and rules of verb, they are also interconnected, okay। So that is why यहाँ पे उसी चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं। So वो सारी चीज आपको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। So that is all for today's class। आप लोगों को, आप लोग जितना जल्दी हो सके आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ताकि, क्योंकि मंडे से क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी आप ये जो है क्लासेस जो है हम लोग का स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और अच्छे से क्लासेस चलने लगे। अब उसके बाद आप ये क्वेश्चन प्रॉपरली क्या है हैंडल कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ पाओगे, अच्छे से आप सारे रूल सीख पाओगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। हम लोग आने वाले क्लासेस में, ठीक है, सेम टाइमिंग, आने वाले क्लासेस में हम लोग अच्छे से सारा चीज कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।